The Mahavikas Aghadi holds a protest in Mumbai against the Eknath Shinde-led government. It is the protest versus protest in Mumbai. Now, while the Mahavikas Aghadi government has held a protest against the Shinde government over the collapse of the Chhatrapati Shivaji Maharaja statue in Sindhudurg district. Top opposition leaders including the Shiv Sena UBT chief Uddhav Thackeray, State Congress President Nana Patole and NCP SP Supremo Sharad Pawar are also participating in the protest. Opposition party workers have joined the protest, named hit with footwear carrying massive slippers as they march from Hutatama Chowk to the Shivaji statue at the Gateway of India. 35-foot statue of the Maratha Empire founder Chhatrapati Shivaji Maharaj was unveiled by Prime Minister Narendra Modi last year at a fort in Maharashtra's Sindhudurg district, collapsed on August 26th. Chief Minister Eknath Shinde blamed the statue collapse due to the strong winds has sparked a massive political row in Maharashtra. The project was handled by the Navy in the coordination with the state government. Police have arrested the structural consultant for the project and its contractor. They have been charged under the sections relating to the attempting to the murder, culpable homicide and act endangering life and safety of others. Amid the political backlash, Prime Minister Narendra Modi has now responded and apologized to the people for the collapse of the statue, stating that Chhatrapati Shivaji Maharaj is not just a name or a king. For us, he is a deity. Today, I bow my head and my feet and apologize to my deity. I also apologize to the people who have been hurt by the collapse. Joining me on the broadcast is my colleague Nitish. Nitish, as you join us, what is the situation at this point of time where the protests were actually taking place in retaliation against the ruling BJP government in Maharashtra on the very issue of the collapse, as the opposition top brass has also been seen participating in the protest that has been backed and spearheaded by the opposition leaders against the malfunctioning and corruption into the matters which related to the collapse of the Chhatrapati Shivaji Maharaj statue. All right, let me go across to my colleague Nitish once again to restore the connection. Nitish, as we can understand, as the statue collapse has now created a political controversy in the state of Maharashtra, what is the present situation prevailing on the ground where the opposition is up in the arms against the Maharashtra government at this point of time? As far as the statue collapse is concerned, politics sees no end in sight. जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से महाविकास आघाड़ी के तरफ से आज मोर्चा निकाला गया था मुंबई के हुतात्मा चौक से मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया तक, जो है मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा है वहां तक ये मोर्चा निकाला गया था। और वहां पर खुद शिवसेना युवाटा प्रमुख उद्धव ठाकरे वहां पर पहुंचे थे, शरद पवार, नाना पटोले, महाविकास आघाड़ी के सारे तमाम बड़े चेहरे जो है उन्होंने इस मोर्चा में हिस्सा लिया और वहां पर पहुंचकर उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे का कहना था कि जो प्रतिमा ढही है सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की, उसकी कोई माफ़ी नहीं है। भले ही प्रधानमंत्री मोदी आकर माफ़ी मांग कर गए हैं, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी को ये बताना चाहिए कि वो किस लिए माफ़ी मांग रहे हैं, प्रतिमा ढहने के लिए या जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके लिए। उसके अलावा वो बाकी किन किन चीज़ों के लिए माफ़ी मांगेंगे और इन सारी चीज़ों पर राजनीति नहीं हो रही है, ऐसा बयान उद्धव ठाकरे की तरफ से दिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर इस पूरे ये जो मामला सिंधुदुर्ग का है, वहाँ जब 26 अगस्त को शिवाजी महाराज का प्रतिमा ढहा, उसके बाद से ही लगातार महाविकास आघाड़ी और खास करके कांग्रेस इस पर हमलावर थी और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इस पूरे घटना को राजनीतिक रंग दिया है, ऐसा भाजपा का कहना है। और आज भाजपा की तरफ से भी जो है एक प्रोटेस्ट मुंबई के दादर में जो है ऑर्गेनाइज किया गया था और साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से पूरे देश पूरे राज्य भर में, पूरे महाराष्ट्र राज्य भर में जो है जगह जगहों पर शिवाजी महाराज की जो महिमा गीत है पोवाड़ा,
वो गाकर जो है महाविकास आघाड़ी का विरोध किया गया है। आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव जो महाराष्ट्र में आने वाले 2 महीनों में होने वाले हैं, उसके तहत जो है अब इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग जो है दिया जा रहा है। तो वहीं अब बीजेपी भी जो है उन्होंने भी विरोध प्रदर्शन का जवाब विरोध प्रदर्शन से देना शुरू किया है और इस पूरे मामले पर राजनीति ना करने की नसीहत उन्होंने महाविकास आघाड़ी को दी है। All right, Nitish, thank you with all these latest details. Now, meanwhile, some reactions are also pouring in over the MVA protest. Now, let's listen in. ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जो प्रतिमा है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई। ये बहुत ही दुखद बात है। ये हमारे लिए बहुत ही संवेदनशील बात है। तमाम महाराष्ट्र के शिव भक्त जो है उनके लिए ये बहुत ही भावनिक मुद्दा है। और छत्रपति शिवाजी महाराज ये हमारे लिए राजकीय मुद्दा नहीं हो सकता है। ये हमारे लिए अस्मिता और श्रद्धा का विषय है। लेकिन हुई ये घटना वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो दुर्दैवी है, दुखद है। लेकिन उसकी राजनीति करना उससे ज़्यादा दुखद है, दुर्दैवी है। वो आज विपक्ष कर रहे हैं। मैंने अभी वीडियो दिखाया है, ये कर्नाटक का वीडियो है। उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज जी का प्रतिमा वो तोड़ने के लिए 2-2 जेसीबी लाए गए और वो स्टैचू उखाड़ दिया। अब ये कौन सा है? अब उनको इन्होंने जोड़ा मारना चाहिए, उनको चप्पल से मारना चाहिए। और वो छोड़कर यहाँ पर आज जो कर रहे हैं, ये जनता महाराष्ट्र की बहुत ही सुज्ञ है, समझदार है। आने वाले इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी इनके पैरों तले जमीन खिसक गई है, उनको हार उनकी नज़र आ रही है और इसलिए नज़दीक बहुत ही घोड़ा मैदान नज़दीक है। और आने वाले इस चुनाव में हमारे महाराष्ट्र की जनता इनको जोड़े से मारेगी, इतना मैं कहता हूँ। ये भी मैं कहूँगा, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के लिए कोर्ट में चले गए अनिल वडपल्लीवार कांग्रेस का आदमी है। अरे एक बार मुंबई हाईकोर्ट गए, मुंबई हाईकोर्ट ने इनको भगा दिया, फटकारा। अभी नागपुर हाईकोर्ट में गए। ये क्या है? ये गरीब मेरी बहन, उनको हम 1,500 महीना दे रहे हैं, 18,000 सालाना दे रहे हैं। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? और उसको भी कोर्ट में जाकर इसको रोकने के लिए उन्होंने कोशिश की है। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना सुपर हिट हुई है और इसलिए डर गए हैं वो, इसलिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राजकारण के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वो हमारे देवता है, वो हमारे महाराष्ट्र के आराध्य देवत है और इसलिए हमने खुद छत्रपति शिवाजी महाराज की एक बार नहीं 100 बार माफ़ी मांगी, क्योंकि हमारे वो देवता है। ये जो आज आंदोलन हो रहा है पूरे तरीके से राजनीतिक आंदोलन है। इन्होंने महाविकास आघाड़ी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज का उन्होंने सम्मान नहीं किया। आप मुझे पंडित नेहरू जी का, इंदिरा जी का एक भी लाल किले से भाषण दिखाइए जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का उल्लेख किया हो। इतना ही नहीं, नेहरू जी ने तो अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा अपमान किया। क्या उसकी माफी कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी मांगेगी? मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस ने छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बुलडोजर से हटाया, तोड़ दिया। क्या उसकी माफी कांग्रेस मांगेगी? यही तो दुर्भाग्य है। आप तो चैनल वाले हो। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले का खंडन हुआ, आपको पता नहीं है? इतना तो मतलब बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। वो पूछते तो बात अलग है, सबको पता है ना हम क्यों आ रहे हैं वहां। हमारे लिए जो देवता समान छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतले का खंडन हुआ, महाराष्ट्र की अस्मिता धारा तीर्थ पर गिरी। हमारी आस्था, हमारी अस्मिता, हमारा स्वाभिमान सब कुछ टुकड़े टुकड़े होकर वहां गिरा था।
और इतना अपमान होने के बावजूद भी उसका समर्थन करने वाले राजनीतिक दलों के सत्ता पक्ष के लोग उसकी निर्भत्सना न करे तो क्या करे। हम तो यहाँ कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी खुद कहती है, छत्रपति शिवाजी महाराज के आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ। शर्म नहीं आती क्या? कहा बची होगी तो देख लो, अगर है तो। और इसीलिए पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब जिस तरह से इसके बारे में पेश आए कि भाई ये महाराष्ट्र का अपमान है। अब तो हम तो जनतंत्र के मुताबिक हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का यहाँ भी एक पुतला है, तो वहां जाकर अभिवादन करना चाहते हैं तो हमारे ही महाराष्ट्र में हमें ही पुलिस रोकती है कि वहां अभिवादन भी करने नहीं जाना। यहाँ झंडे लगाए थे, भगवे दिखते हैं क्या कोई? रात को यहाँ 500 झंडे लगाए थे, भगवे गेरुए झंडे हमारे। वो झंडे ही निकालते हो आप लोग? गेरुए झंडे से भी नफरत आई क्या आपको? हिंदुत्व की बात करते हो, झंडा भी निकालते हो, और इतने लाचार पुलिस मैंने कभी नहीं देखी। Honorable Prime Minister was emotional. He expressed his grief over the incidents. But the ministers, the Ministry of Maharashtra, the government of Maharashtra, which should have expressed themselves, they didn't. On the contrary, they started picking up with the opposition in a wrong way and calling it that we are politicizing the issue, whereas this was the most affecting emotional issue which Maharashtra never witnessed in the past. We had done everything in a democratic way. We had applied to the administration, to the police, and we expected that permission would come in due course, which they didn't do. On the contrary, see the deployment which is being done. It looks as if some warlike position is going to take place, but we are assuring and we are expecting cooperation from the same administration and police authorities. देखिए, ये छत्रपति शिवाजी महाराज ये महाराष्ट्र की अस्मिता है, स्पिरिट है, और मुझे लगता है कि इसको ठेस पहुंचने का काम इस घटना से घटी है। और लोकशाही लोकतंत्र के माध्यम से यह जो आज जो निषेध मोर्चा किया जा रहा है वो एक लोकशाही का एक भाग है, और इस तरह से परमिशन न देना ये भी लोकशाही का गला घोटने का काम है। तो सरकार ने इस तरह से गला घोटने का काम नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। परमिशन भी देना चाहिए और लोकशाही से अपने अपने मुद्दे व्यक्त करने का। पुलिस ने परमिशन नहीं दिया है, तो अभी क्या कर सकते हैं? हम सही मार्ग से वहां तक जाएंगे। हम कोई हिंसा करने वाले लोग नहीं है, हम सिर्फ हमारी भावना व्यक्त कर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी प्रोटेस्ट किसके लिए कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। इस धरती की शान, महाराष्ट्र की शान, इस मिट्टी को छत्रपति शिवबा की मिट्टी करके जाना जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज की मिट्टी करके जाना जाता है। उनका पुतला ढह जाता है और इन्हें इसकी जरा भी शर्म नहीं है। कह रहे हैं कि राजनीति मत करो, और वो पुतला ढह गया है। उसके समर्थन में अगर ये भाजपा वाले और ये बाकी सारे लोग अगर ये कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए। 13 करोड़ जनता इस महाराष्ट्र की माफ नहीं करेगी। ये बता रहे हैं कि पंतप्रधान मोदी जी ने माफी मांगी, वहाँ 1000 लोगों के सामने मुट्ठी उठा के माफी नहीं मांगते हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.